Hello, myself Rasika Pagaria. In last lecture, we studied about the views on natural rights. In that we studied its meaning, what are natural rights. Then we studied the Locke's theory of natural rights. In that first we studied natural rights are birth rights. These rights are inherited, ineligible and unavoidable. Then we studied rights, main function of state, natural right, right to property, then implication of theory of natural rights. All these topics we covered in the last lecture. Now today we are going to start with the new subtopic, that is the theory of social contract. Hobbes, Locke and Rousseau have explained the origin of the state in terms of social contract. See, Hobbes, Locke and Rousseau, इन लोगों ने क्या किया है, they have explained the origin of state in terms of social contract. Format of the theory followed by them is identical, comprising human nature, state of nature, the social contract and the establishment of the state. See, format of the theory का format of the theory क्या है, it is followed by them is identical है, comprising, उस theory में क्या लिखा है, वो theory के बारे में, उस theory में अपने को लाइक अपन बोलते हैं ना, कोई फंक्शन रहता है तो भी बोलते हैं ना, हाँ, द प्रोग्राम विल बी फॉलोड बाय ब्ला 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 ब्ला, द प्रोग्राम विल एंड विद द फॉलोड बाय द नेशनल एंथम. वैसे ही यहाँ पे जो फॉर्मेट ऑफ द थ्योरी है ना, वो कैसा है, फर्स्ट इट इज़ आइडेंटिकल, देन इट इज़ कंप्राइजिंग ह्यूमन नेचर, देन स्टेट ऑफ नेचर, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट. हॉबीज यूज द theory to advocate absolutism. See, हॉबीज ने theory यूज की to advocate absolutism, like अकेलापन, इन सब के लिए ये किया है. Locke's objective was to justify limited and constitutional government. See, Locke's का objective क्या था, Locke's objective was to justify limited and constitutional government. See, अपन कुछ भी काम करें तो उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव रहता है, कोई हेतु रहता है, राइट. अपन फंक्शन भी करते हैं तो ऐसे टाइम पास के लिए फंक्शन करते हैं क्या, नहीं, वो फंक्शन करने के पीछे कोई ना कोई तो मोटिव रहता है ना. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. Locke's objective was to justify the limited and constitutional government. Rousseau's doctrine was meant to condemn despotism and provoke people to revolution. See, Rousseau का क्या था, वो किसके लिए था, डेपोटिज्म. अगर आप पे कोई रूल कर रहा है तो यू रिवोल्ट अगेंस्ट इट एंड वो रूल को निकाल दो. देन Locke's perception of human nature. Locke's political theory rests on his perception of human nature. Perception means, anyone know the meaning of perception? सोचने का, thinking. Locke's political theory क्या है, rest on his perception of human nature. Locke does not accept Hobbian view that man is quarrelsome and aggressive. See, Locke does not Locke को क्या है, जो हॉबियन ने बोला है ना, लाइक ह्यूमन नेचर के बारे में, लाइक आदमी हमेशा कॉरल करते रहता है, एग्रेसिव है, तो लॉकी डज नॉट एक्सेप्ट दिस. एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी. लॉकी बिलीव्स इन गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर. लॉकी क्या बोलता है, ठीक है, माना कि इंसान खराब है, कॉरल समय सब है, पर उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छाई भी तो रहेगी. हाँ, ऐसा है क्या, सब इंसान खराब रहते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही रहेगी ना. तो सेम थिंग लॉकी इज सेइंग दैट लॉकी बिलीव्स इन गुडनेस, वो जो अच्छाई है, लॉकी बिलीव्स इन दैट अच्छाई ऑफ ह्यूमन नेचर, दैट इज द लॉकी बिलीव्स इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर. टू हिम पीपल आर फंडामेंटल डिसेंट ऑर्डरली. अभी टू हिम लॉकी के लिए क्या है, पीपल क्या है, वो एकदम फंडामेंटली डिसेंट है, ऑर्डरली है, सोसाइटी लविंग है, एज वेल एज केपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्फ. सी, लॉकी क्या बोल रहा है, लॉकी के हिसाब से लोग कैसे हैं, पीपल कैसे हैं, दे आर डिसेंट, ऑर्डरली. अपन बोलते हैं ना, थोड़ा सा सिस्टमैटिक रहो, ऑर्डरली रहो, अपना अपना खुद डिसीजन लेना सीखो. तो लॉकी क्या बोलता है, टू हिम
उसके लिए लोग कैसे है, डिसेंट है, ऑर्डरली है, एंड दे आर केपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्फ, राइट। वो खुद का खुद रूल कर सकते हैं, खुद का खुद सब काम कर सकते हैं। Locke's political philosophy was immensely influenced by the time in which he lived and was involved. See, Locke's political philosophy was immensely influenced by the time in which he lived and was involved, right? लॉकेस पॉलिटिकल फिलोसफी कैसा था, बहुत ज़्यादा उस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर गया जो उस वक्त वहाँ पे रहते थे। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ डिस्ट्रेस एंड while in political exile he witnessed the vicious accept of human nature. See, जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस चल रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे थे, पॉलिटिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तब ह्यूमन नेचर एक सर्कल में चलता है। विशियस मतलब कंटिन्यू एक प्रोसेस है, ह्यूमन नेचर एक कंटिन्यू चलता रहता है। इट इज़ सेड अबाउट दैट, बट एट द सेम टाइम ही हैड एक्सप्लेन्ड द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। उसी वक्त अभी ह्यूमन जैसे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, अपन भी स्टडीड द, अपन ने कभी ना कभी तो सुना होगा, स्कूल में सुना ही होगा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। लाइक पॉवर्टी में एक बार आदमी चला गया तो पॉवर्टी में कूदता रहता है ना, ऊपर आना बहुत मुश्किल जाता है। उसी तरह एट द सेम टाइम ही हैड एक्सप्लेन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। और ये सारा विशियस सर्कल है, जैसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं वैसे आदमी चेंज करता है, और ये चेंज, ये सारा सब कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। इसमें भी लॉकी ने क्या देखा, ही हैड सीन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। देखो हिज परसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर वॉज नॉट एज सिलेंडर एज दैट ऑफ हॉबीज। तो उनका जो परसेप्शन है, जो वो बोल रहे ह्यूमन नेचर के बारे में और जो हॉबीज़ बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग है। दोनों का बोलना एक जैसा नहीं आता है, दोनों एक जैसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉकी, all means are natural in a state of equality and our people are born free. See, लॉकी क्या बोलता है, all men are naturally in a state of equality. See, हर कोई इक्वली बॉर्न रहता है, कोई मेहनत से, लक से कोई ऊपर आ जाता है, कोई वहीं का वहीं रह जाता है, कोई नीचे भी चला जाता है, बट जन्मते तो सब इक्वली है ना। सी, सरकारी हॉस्पिटल में भी बच्चे ही, लड़का या लड़की ही जन्मता है। आप बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तभी भी लड़का या लड़की, ऐसे ही कुछ होता है। अगर ट्विंस होना रहता है तो ट्विंस होता है, बट इससे अलग कुछ होता है क्या, नहीं ना। अभी डिलीवरी भी या तो नॉर्मल होती है या तो सीजरिन होती है। सो दिस इज, ये हर किसी का, दिस इज एवरीथिंग इज नेचुरल। तो ऑल आर बॉर्न इक्वली। ये जो भेदभाव किया है ये सब अपन ने किया है। एंड ऑल मैन आर बॉर्न फ्री, और हर कोई फ्री बॉर्न है। ऑल पीपल आर बॉर्न फ्री। कोई ऐसे अटका है क्या किसी में कि नहीं तू इस कास्ट में बॉर्न हुआ है तो तू ये है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऑल आर बॉर्न फ्री। Desire is the spring of all human act and that are feeling of pleasure and joy. See, desire क्या है? Desire is the spring of all human act. Desire यानी wish. We always desire ना. I desire to have a Mercedes. I desire to have a Lamborghini and all. What is all? This is all desire, and this desire makes the human being act according to that, and that feeling gives you a pleasure, and all this feeling gives you a pleasure. When desire is satisfied, खुशी कब मिलती है, जब आपकी इच्छा पूरी होती है, राइट। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो आपको खुशी होगी क्या, बट ऑब्वियसली नो। He maintains that the object of human action is the acquisition of pleasure and avoidance of pain. See, he maintains that the object of all human action, see, ह्यूमन अपन कोई भी एक्शन लेते हैं, लाइक मुझे कार चाहिए, मुझे कार के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। अपन उस हिसाब से मेहनत करते हैं, राइट। कार के साथ लेने के हिसाब से मेहनत करते हैं एंड ऑल। ये सारे क्या हैं, ये एक्शंस है आपके डिज़ायर फुलफिल करने के लिए। और उसमें आपको तकलीफ भी होती है तो क्या बोलते हैं, रहने दे, थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, होने दे, बट मेरी इच्छा मुझे पूरी करनी है, होता है ना। अभी आपको
एग्ज़ाम आती है पास में, तो क्या करते हो आप? करते हो ना पढ़ाई दिन रात, करते हो ना, उतने एफर्ट्स डालते हो ना। एटलीस्ट आप पास हो उतने तो एफर्ट्स डालते हो, राइट? सो सेम थिंग इज बीन टोल्ड हियर. फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ह्यूमन नेचर स्टेट एग्जिस्टेड. इधर से फिर ह्यूमन नेचर के बारे में बोलना शुरू करते हैं. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. According to Locke, state exists as the means for attending the peace, security and well-being of its individual members. See, according to Locke क्या है? State exists as the meaning for attending peace, security and well-being of individual members. See, अपन ने पहले भी देखा स्टेट क्यों है. स्टेट का क्या काम है कि बाबा अपने स्टेट में अपन पीस बनाए रखे, सबको सिक्योरिटी दे और हर इंडिविजुअल का भला करे, देखे करे, राइट? आज अपन वही कर रहे हैं ना. आज महाराष्ट्र में कोविड बढ़ रहा है तो व्हाट इट इज़ डूइंग, इट इज़ थिंकिंग ऑफ डूइंग लॉकडाउन. बीच में 8 दिन लॉकडाउन भी हुआ था. स्कूल कॉलेज जो थोड़े बहुत चालू हुए थे वापस बंद किए. ये सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ था, राइट? एंड पर्टिकुलरली इन मुंबई पूना इट हैपेंड. सो ऑल ओवर महाराष्ट्र भी नहीं था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है. क्यों किया सिर्फ पूना बॉम्बे में ही ऐसे सब? क्यों किया? क्योंकि अपने स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ताकि सिक्योरिटी, लोगों को सिक्योरिटी दे, हर इंडिविजुअल की भलाई के बारे में सोचे. He emphasized that government is the trustee that works on behalf of the people, right? बराबर है ना. आज अपन देखते ना, आज गवर्नमेंट किस कौन बनाता है? गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट. हाउ डू वी फॉर्म द गवर्नमेंट? जब अपन वोट करते हैं और जिसको मेजोरिटी वोट मिलता है. अब मेजोरिटी वोट कैसे? अभी कुछ तो उसने अच्छा किया होगा, उसके फेवर में रहेगा, इसलिए वी वोटेड हिम. उनको वोट देके अपन ने जिताया है. तो क्या होता है? वी हैड फॉर्म द गवर्नमेंट, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने जिता के लाया और उनकी गवर्नमेंट बन गई, राइट? तो अपन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और गवर्नमेंट रिप्रेजेंट अस, कॉमन पीपल को गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है, राइट? अपने प्रॉब्लम अपन गवर्नमेंट को जाके बोलते हैं एंड गवर्नमेंट ट्राइज टू सॉल्व इट. अगर स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं होता है, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, देन इट गोज टू द नेशनल लेवल, राइट? नहीं, वी डायरेक्टली डोंट गो टू द स्टेट गवर्नमेंट, राइट? अपन अपने आजू बाजू अपने यहाँ पे कॉर्पोरेटर वगैरह है, अपन जो भी है पहले अपने कॉर्पोरेटर को वगैरह बोलते हैं, देन इट गोज टू द मेयर एंड ऑल, राइट? फिर एमएलए, ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना अपन, कि अपन डायरेक्टली सीधा स्टेट लेवल पे घुस जाते हैं. बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो और पहचान हो तो देन वी कैन गो टू द डायरेक्ट स्टेट लेवल, अदरवाइज वी डोंट डू सो, राइट? So he emphasized that government is the trustee that works on behalf of the people. He said historical evidence went to show that all government authority was derived from people and rested on their concern. He said, उन्होंने क्या बोला? हिस्टोरिकल पहले के एविडेंस अगर देखा जाए तो क्या करते हैं? that government or authority was deprived from the people and restricted on their concern. गवर्नमेंट से अथॉरिटी बहुत बार ली गई थी और लोगों को दे दी गई थी, क्योंकि अगर आप लोगों का भलाई नहीं सोचोगे, लोगों का काम नहीं करोगे, तो आपको उतनी पावर में भी आप नहीं रहोगे. ऐसे ही होता है ना आज भी. Locke said people are sufficiently rational to see that their best interest lies in mutual and peaceful cooperation. Locke said people are sufficiently rational. लोग क्या हैं? People are sufficiently rational to see that their best interest lies in mutual and peaceful cooperation. अगर लोगों को क्या है, अगर गवर्नमेंट आपका भला करे देन ओनली यू आर हैप्पी, राइट? तभी आप उस सरकार से खुश रहोगे और देन इट लीड्स टू क्या है? पीसफुल कोऑपरेशन. आप भी सरकार को कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ हो जाए तो इवन यू ट्राई टू हेल्प द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट आपके बारे में सोचेगा तो आप भी गवर्नमेंट के बारे में सोचोगे, राइट ना? इट गोज बोथ वे. या फिर सिर्फ गवर्नमेंट को ही आपके बारे में अच्छा सोचना है और आप कभी गवर्नमेंट का कुछ नहीं सोचोगे, ऐसा नहीं है ना. इट गोज बोथ म्यूचुअल वे. सो सेम थिंग इज सेड हियर. नाउ Locke's perception about state of nature. Pre-state stage. Now Locke's perception about state of nature. First is the pre-state stage. According to Locke, state of nature was
pre-political but not pre-social stage. See, according to Locke क्या है, state of nature was pre-political but not pre-social stage. There was no political authority. अब वहाँ पे क्या थी, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी. अब यहाँ क्या है, कोई अथॉरिटी नहीं है, हर कोई अपने आप शांति से रूल कर रहा है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है. ये एक फर्स्ट स्टेज है, किसी के पास भी अथॉरिटी कुछ भी नहीं है. एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क पीसफुली. नाउ अंडर लॉ, नेचुरल लॉ. अभी प्री स्टेज हो गया, सेकेंड स्टेज इज अंडर नेचुरल लॉ. इट वॉज नॉट लॉलेस स्टेज. अभी स्टेज में क्या है, लॉलेस स्टेज नहीं है. पीपल एंड देयर बिहेवियर वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ नेचुरल लॉ. सी, जो आपके नेचुरल लॉ है, पीपल एंड देयर बिहेवियर वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ नेचुरल लॉ. द स्टेट ऑफ नेचर वॉज गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर विच वॉज बेस्ड ऑन रीजन ऑन कॉन्शियसनेस. सी, द स्टेट ऑफ नेचर वॉज गवर्न बाय, अब ये जो स्टेट ऑफ नेचर है ये किसके हिसाब से चल रहा था, इट वॉज वर्किंग एज पर द लॉ ऑफ नेचर एंड इट वॉज बेस्ड ऑन सर्टन रीजन्स एंड कॉन्शियसनेस. अब ये लॉ ऑफ नेचर पे ही सब कुछ चल रहा था. गवर्नमेंट थोड़ी सी फॉर्म हुई है बट दे आर एक्टिंग एज पर द लॉ ऑफ नेचर एंड इट इज़ फॉर सम रीजन एंड विथ सम कॉन्शियसनेस. सेकेंड, नॉट अ स्टेट ऑफ वॉर बट ऑफ पीस एंड गुडविल. According to Locke, the state of nature is the state of goodwill, mutual assistance and preservation of peace. According to Locke क्या है, the state of nature is the state of goodwill. See, state of nature is the state of goodwill, mutual assistance and preservation of peace. Equality in personal liberty. In the state of nature, people were free and equal. In the state of nature क्या है, people were free and equal. There were equality not in intellect, physical might or possess, but equality in personal liberty. See, people क्या थे यहाँ पे, people were free and equal. Everyone was free and everyone was treated equally here. अभी equality सिर्फ इंटेलेक्ट फिजिकल माइट में नहीं थी, बट पर्सनल लाइफ में, लिबर्टी में, हर किसी को पर्सनल लाइफ में भी पूरी आज़ादी दी गई थी. Freedom of life, liberty and property was everybody's inheritance and inalienable birthright. See, हर किसी को आज़ादी से अपनी लाइफ जीनी है, अपने को प्रॉपर्टी बनानी है, हर किसी को अपना अपना डिसीजन लेना है. ये सारे क्या हैं, ये राइट्स आपको आपकी बर्थ से ही मिल जाते हैं. राइट, आपको जन्मते ही आपको ये सारे राइट मिलते हैं. लाइक नोबडी कैन टेल यू कि बाबा ये किसने तुझे आज़ादी दी है एंड ऑल. अभी तो अपने बच्चों को भी आज़ादी से जीने का रहता है. इतने इतने बच्चे रहते हैं, अपने 5-6 साल के बच्चों को भी क्या रहता है, अरे हमको हमारा खेलने दो ना, हमको हमारा शांति से रहने दो ना, आप आपका काम करो ना, ऐसे बोलते इतने से बच्चे. जबकि उनको ये राइट्स वाइट्स कुछ नहीं मालूम है, बट स्टिल दे से दैट. लाइक इतना जनरेशन इतना फास्ट है और इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. नाउ लाइक सिविल सोसाइटी, Locke's state of nature was very much like civil society without a government. See, Locke's state of nature क्या था, it was like civil society. Civil society मतलब अपन पुलिस वाले वगैरह कैसे देखते हैं, एकदम सब डिसिप्लिन से रहते हैं, दे वर्क प्रॉपरली, दे डू देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबल, एवरीथिंग प्रॉपरली. राइट, तो Locke's state of nature was कैसा था, वो भी बहुत लाइक इट वॉज लाइक सिविल सोसाइटी विदाउट अ गवर्नमेंट. बिना किसी गवर्नमेंट के इट यूज टू वर्क लाइक अ सिविल सोसाइटी. Now next point is the state of nature had some serious inconvenient. अभी जो state of nature है उसके कुछ ना कुछ तो drawbacks रहेंगे. That is they have called it as a serious inconvenience. In the absence of an established, settled and known law, every man was the interpreter of law. See, in the absence of an established, settled and known law, एवरी मैन वॉज द इंटरप्रेट ऑफ लॉ. सी, अभी हर जो भी वहाँ पे सेटल्ड है, एवरी मैन क्या है, उसको अपने लॉज क्या है थोड़े से ध्यान में रखने हैं और उस हिसाब से ही और शी सपोज टू बिहेवियर. इन द एब्सेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर टू एनफोर्स लॉ, एवरी मैन हैड अ राइट टू एग्जीक्यूट द लॉ ऑफ नेचर. सी,
in the absence of executive power to enforce law. See, अगर executive power नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है जो लॉ का ध्यान रखे, जो आप लॉ ब्रेक करोगे तो आपको पनिशमेंट देंगे। जैसे अपने पास कोर्ट रहते हैं, दे आर नथिंग बट नहीं सॉरी, कोर्ट आर कॉल्ड एज जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव पावर यानी अपने नेताज वगैरह, लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे ऑल फॉल इनटू द एग्जीक्यूटिव पावर। अभी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर किसी के हाथ में नहीं है। सो एवरी मैन हैड द राइट टू एग्जीक्यूट द लॉ ऑफ नेचर। तो हर किसी को अपने 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 बेसिक राइट्स मिलेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशरी ईच वन इंटरप्रेटेड द लॉ एज पर हिज कन्वीनियंस। तो अब क्या हो गया, अब जुडिशरी भी नहीं है यहाँ पे। अभी देखो, अपने को पता है कि बाबा ये नेता लोग हैं, ये बड़े बड़े डिसीजन लेंगे, हम लोग नहीं ले सकते, हम आम आदमी है, हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुना है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट, इन ऑफ अपने एमएलए एमपीज, इनको सब अपन ही चुनते हैं ना। तो वो लोग हमारी भलाई के लिए ऑन आवर बिहाफ दे विल टेक द डिसीजन एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल। तो अपन ने राइट्स अब उनको दिए हैं, थोड़े से राइट्स अपने उनको दिए हैं, बराबर बड़े बड़े डिसीजन लेने का हक अपन ने उनको दिया है, और उनका डिसीजन सबने फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर किसी के पास है ही नहीं, तो पता ही नहीं कौन क्या लॉ कैसे करेगा, राइट। सेम थिंग विद द जुडिशरी। अपने यहाँ पे अगर अपन ने लॉ कुछ ब्रेक किया, कुछ गलत काम किया, तो अपने पास जुडिशरी है अपने डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, राइट, टू गिव यू जस्टिस एंड ऑल। यहाँ पे तो क्या है, जुडिशरी भी नहीं है, तो लॉ सबने अपने अपने हिसाब से लॉ बना लिया, अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लॉ बना लिया, राइट। लाइक अगर आप बोलो अरे ये अपना लॉ है, तो बोलेगा नहीं मेरे को नहीं पड़ता, ये मेरे लिए नहीं लॉ है, तेरे लिए है तो तू रख तेरे लिए लॉ। किसने बोला और कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लॉ है बोल के एक एक। तो ऐसे होता है, तो जुडिशरी भी ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, अभी एज पर लॉ के क्या है, उसके में ना एग्जीक्यूटिव पावर है ना जुडिशरी है, तो सारा क्या है, एवरीथिंग हैज़ बिन मेस्ड अप। Variety in the interpretation of law created disorder and confusion. See, हर किसी ने अपने अपने अलग लॉ बना दिए, हर कोई अपने हिसाब से ये काम कर रहा है, तो क्या हो गया, सारा डिसऑर्डर हो गया और कन्फ्यूजन हो गया। आज अपने यहाँ पे जुडिशरी है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स रेगुलेशन लॉ सब लिखे हुए, तो अपने पास एक गाइडलाइंस ले, वी आर सपोज टू फॉलो दैट, राइट। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी है ना, वो ऐसे ही जज नहीं बना है, उसने बहुत से ही हैज़ डन हिज लॉ, उसने बहुत से केसेस देखे हैं विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उसके बाद ही वो जज बने हैं, राइट। लाइक अपन ने देखा था व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, राइट। तो सेम थिंग, तो अभी यहाँ पे वैसा कोई है ही नहीं, जज नहीं है, लॉ ऑर्डर कुछ भी नहीं है, तो क्या है, एवरीथिंग हैज़ बिन confused एंड नथिंग इज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। देयर वॉज नो पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अब क्या है, अब वहाँ पे कोई पीस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी को भी, लाइक कब क्या हो जाए पता नहीं, लिबर्टी भी नहीं है एंड किसी की प्रॉपर प्रॉपर्टी भी नहीं है। पीपल रियलाइज दैट दिस इनकन्वीनियंस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर कैन बी रिमूव्ड टू एस्टैब्लिश अ सिविल गवर्नमेंट बाय ऑल। अब पीपल को ध्यान में आ गया, अभी इनकन्वीनियंस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर ये अपन निकाल सकते हैं अगर अपने पास प्रॉपर एक गवर्नमेंट होगी तो, क्योंकि इतना सब डिसऑर्डर चल रहा है, इतना सब कुछ मैस हो गया है, तो अब क्या चाहिए अपने को, एक प्रॉपर गवर्नमेंट चाहिए, एक प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए। अगर अपने पास प्रॉपर गवर्नमेंट होगी, प्रॉपर अपने को गाइडलाइंस मिलेगा, तो क्या होगा, एवरीथिंग विल फॉलो दैट एंड थिंग्स विल गो ऑन स्मूथली इन अ प्रॉपर वे and in a better way. I think we'll wind up our lecture here. In next lecture, we will start with the purpose of the contract. Thank you.